Good morning to all students. Students, in my last lecture, we have studied 10 adjustments of not-for-profit concern. Now today, we are going to study treatment of adjustments or additional information related to subscription. Today our topic is treatment of various adjustments or additional information related to subscription. That means today we are going to see various adjustments related to subscription and its ट्रीटमेंट, इट्स इफेक्ट. आज हम सब्सक्रिप्शन से जुड़े हुए सब एडजस्टमेंट को देखने जा रहे हैं और उसके इफेक्ट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है, वो आज हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टोल्ड यू दैट सब्सक्रिप्शन इज रिकरिंग इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. इट इज पेड बाय members of not for profit concern every year, okay, for maintaining their membership. not for profit concern के जो मेंबर होते हैं वो अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, उनके जो मेंबर होते हैं वो हर साल की मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए क्लब को एवरी ईयर वो क्या देते हैं, मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. ओके, सो सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू और रिकरिंग इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. सो वी विल सी वेरियस इफेक्ट्स रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट given in the question is related with previous year, it will carry only one effect. Again I will repeat my statement. If additional information or if adjustment, additional information का मतलब होता है adjustment, if adjustment or additional information is related with previous year means last year, so it will carry only one effect. You have to give one effect for those adjustments which are related with previous year. अगर adjustment last year से related है, last year means previous year, पिछला साल, तो उसका खाली आपको एक ही इफेक्ट देना है. ओके, and if additional information means adjustment is related with current year, you have to give two effects. ओके, अगर adjustment current year से related है तो आपको उसके दो इफेक्ट देने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल टेक स्मॉल एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन एंड इट्स वेरियस इफेक्ट. सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हमें कैसे सॉल्व करनी है, उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने में सॉल्व कर रहा हूं. ओके, नाउ इन एग्जामिनेशन और इन क्वेश्चन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न you will get two things. You will be given two things in question of not for profit concern. First is receipt and payment account of current year, and below that additional information or adjustment will be given. आपको जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर दो चीजें मेंशन की होगी. पहली चीज होगी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऑफ द करंट ईयर. करंट ईयर का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा एंड बिलो दैट यू विल गेट सम एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन ओवर हियर. ओके, first of all you can see here receipt and payment account is given. So receipt and payment account for the year ended 31st March dash dash, year is not given. Okay, two sides are given, receipt side and payment side. Now all of you know that subscription is a recurring or revenue income of not for profit concern.
So it is given in receipt side. So in receipt side, subscription is given. Here subscription is received during the current year. ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल this subscription which is received during the current year will be transferred to income side of income and expenditure account. Now here we will give effect of receipt and payment account and additional information in income and expenditure account and balance sheet. ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एग्जाम में दो चीजें मिलेंगी, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो क्वेश्चन होगा उसमें दो चीजें आपको वो प्रोवाइड करेंगे. ओके, फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बिलो दैट additional information or adjustment will be given. Okay, and on that basis you have to prepare two things. ओके, रिसिप्ट और पेमेंट आपको दिया जाएगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट होगी और उसके बेसिस पे आपको दो चीजें बनानी है. फर्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द करंट ईयर एंड बिलो दैट यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो ये दोनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी है आपके आंसर शीट में. ओके, सो रिसिप्ट दैट इज रिकरिंग रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट will be transferred to income side, but these revenue receipt will be related to current year only. current year का जो भी revenue receipt होगा, I said revenue receipt and revenue payments, revenue receipt and revenue payments of current year only will be transferred to income and expenditure account. Now if revenue receipt is given, okay, subscription is a revenue receipt. Okay, and that's why it will be transferred to income side. Subscription not for profit concern का revenue receipt है. revenue मतलब regular मिलने वाला income है. Okay, and that's why that revenue receipt or that subscription will be transferred to income side. Okay, so first of all we will record subscription during the current year. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. ये हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मिला है. करंट ईयर मतलब जिस साल के लिए आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसे कहा जाता है करंट ईयर. सो दैट सब्सक्रिप्शन वी विल रिकॉर्ड इन इनकम साइड. ओके, सो फर्स्ट इन इनकम साइड वी विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन received for current year. Keep in mind we record only those revenue expenses and those revenue payments which are related with current year only. Okay, previous year का अगर कोई रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू पेमेंट होगा या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू पेमेंट होगा तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करोगे. ओके, ओनली करंट ईयर्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर वी हैव ट्रांसफर टू income side. Now for receipt and payment account only you have to give one effect. receipt and payment account में जो भी आइटम्स दिए हैं उसका आपको खाली एक ही इफेक्ट देना है. ओके, now we will read additional information or adjustment. Now I already explained you. Below receipt and payment account you will get certain adjustment or additional information. Now some additional information will be related to last year and some additional information will be related to current year. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा. अगर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो आपको एक ही इफेक्ट देना है. ओके, एंड इफ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विथ और एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ करंट ईयर
देन यू हैव टू गिव टू इफेक्ट. एडजस्टमेंट अगर करंट ईयर से रिलेटेड होगी तो आपको उसके दो इफेक्ट देने हैं. लेट वी स्टडी द एडजस्टमेंट्स विच आर रिलेटेड विथ सब्सक्रिप्शन. ओके, नाउ हियर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन of last year or previous year. Okay, first adjustment is outstanding subscription of last year or previous year. मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, हमें मिलना बाकी है. ओके, नाउ this adjustment is related with previous year because outstanding subscription of last year or previous year is given. So here you have to pass only one effect. आप उसका एक ही इफेक्ट दोगे क्योंकि ये previous year या last year से रिलेटेड एडजस्टमेंट है. Now if outstanding subscription of last year is given, अगर आपको पिछले साल का या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है तो आप उसका इफेक्ट क्या करोगे? फर्स्ट इफेक्ट विल बी, और ओनली वन इफेक्ट यू हैव टू गिव, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इनकम साइड. इनकम साइड में आप जो सब्सक्रिप्शन लिखते हो उसमें से लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप क्या करोगे? लेस करोगे. दैट्स इट. ओनली वन इफेक्ट यू हैव टू गिव. ओके, फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर. ओके, बिकॉज क्यों हमने लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एक ही इफेक्ट दिया है? Why we have given outstanding subscription of last year only one effect? Because this is the income of last year. ये पिछले साल का इनकम था. Okay, we cannot include or we cannot show subscription of outstanding subscription of last year in current year. We prepare income and expenditure account for current year. हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को करंट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, एंड दैट्स वाई अगर पिछले साल का आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया जाता है तो वो पिछले साल का इनकम होगा. इट इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर. ओके, एंड दैट्स वाई हियर वी विल लेस और वी विल माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर. ओके, so here we will write less outstanding subscription of last year. ओके, ये आप क्या करोगे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस करोगे. ओनली वन इफेक्ट यू हैव टू शो. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग मीन्स मिलना बाकी. नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है बिकॉज सब्सक्रिप्शन वी शो इन इनकम साइड. ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है. सो इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर. ये हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम होगा. ओके, नाउ एनी एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड विथ करंट ईयर वी हैव टू गिव टू इफेक्ट. करंट ईयर से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसके हमें कितने इफेक्ट शो करने हैं? दो इफेक्ट शो करने हैं. ओके, सो outstanding subscription of current year, first of all we will add in subscription received during the current year. current year का हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला था, ओके, उसमें हम क्या करेंगे? उसे ऐड करेंगे. नाउ मैंने इसे ऐड क्यों किया? why I have added subscription outstanding during the current year. current year का outstanding subscription में ऐड क्यों कर रहा हूं? because it is आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर. ये हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम है. ओके, पिछले साल का मैंने आउटस्टैंडिंग लेस क्यों किया? क्योंकि वो लास्ट ईयर का था. वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली फॉर करंट ईयर. सो हमें यहाँ पे करंट ईयर के इनकम के बारे में ही सोचना है. करंट ईयर में हमने कितना कमाया है या कितना पैसा
खर्चा किया है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर वी विल ऐड इन subscription received during the current year. So outstanding subscription of current year has two effects. First is we will add outstanding subscription during करंट ईयर. ओके, ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, नाउ इट्स आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर. जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम है. ओके, and that's why we will show second effect of outstanding subscription in asset side of the balance sheet. Okay, outstanding subscription during the current year का हम second effect कहाँ शो करेंगे, asset side में शो करेंगे, because ये सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है. जैसे करंट ईयर का अगर कोई एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग होता तो आप क्या करते थे. ओके, इफ any expenditure of current year it's outstanding, what you will do, you will add in expenditure side and you will show second effect in liability side. Okay, like that if any income or if subscription of current year is outstanding, for that effect we will add in subscription received during the current year. current year का जो भी subscription मिला है उसमें outstanding subscription add करो and second effect show in asset side of the balance sheet. So in balance sheet asset side we will write outstanding subscription for current year. Okay, we will write that amount in outer column. Once again I will revise both adjustments. Okay, first of all we have to write subscription received during the current year in income side. receipt side में जो current year का subscription हमें मिला है, okay, वो हम income side में show करेंगे. there we will write subscription received during the current year. now first adjustment, outstanding subscription of last year or previous year. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आपको उसका एक ही इफेक्ट देना है. व्हाट यू विल डू, लेस फ्रॉम इनकम साइड. इनकम साइड में जाके सब्सक्रिप्शन से उसे लेस करना है. व्हाट यू विल राइट, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर. ओके, सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. नाउ इफ सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर यू हैव टू गिव टू इफेक्ट. करंट ईयर का एडजस्टमेंट है तो आपको दो इफेक्ट देना है. फर्स्ट इज ये हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम है सो वी विल ऐड इट, क्योंकि उसके वजह से हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा. सो फर्स्ट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐड करो. सेकेंड इफेक्ट, इट्स आउटस्टैंडिंग इनकम सो शो इन असेट साइड. ओके, असेट साइड में आपको जाके लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. ओके, नाउ वी विल सी एडजस्टमेंट नंबर 3 which is related with subscription. Now subscription received in advance. Advance means for next year. Advance का मतलब होता है अगले साल के लिए. So subscription received in advance in previous year or last year. Previous year means पिछला साल, last year means पिछला साल. Now we will read this adjustment again. फिर से हम इस एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे. ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर. ओके, हमें पिछले साल लास्ट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन
कौन से ईयर के लिए मिलता है? वी रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर फॉलोइंग ईयर और नेक्स्ट ईयर। हमें कभी भी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिलता है वो नेक्स्ट ईयर में मिलता है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस ईयर वी रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन, हमें इस साल एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला। इफ वी रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग दी करंट ईयर, करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, तो वो करंट ईयर का इनकम नहीं होगा, इट विल बी इनकम ऑफ फॉलोइंग ईयर, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है। ओके, सो व्हाट थिंग इज मेंशन हियर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। अभी पिछले साल में मिला है, लास्ट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, वो कौन से ईयर के लिए होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। सो लास्ट ईयर का या पिछले साल का नेक्स्ट ईयर होगा करंट ईयर, सो इट विल बी द इनकम ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर का इनकम होगा क्योंकि ये हमें पिछले साल में मिला था। ओके, सो सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर विल बी द इनकम ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर का इनकम है। ओके, सो दिस विल इंक्रीज द इनकम ऑफ करंट ईयर, ये हमारी करंट ईयर के इनकम को बढ़ाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर, पिछले साल जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, and we have to give only one effect because this adjustment is related with previous year. Okay, so here we will write add advance subscription or we will write subscription received in advance in previous year. Subscription received in advance in last year. Last year means previous year. Okay, ये क्या करोगे? हम ऐड करेंगे। ओके, क्यों ऐड किया ये सब्सक्रिप्शन? लास्ट ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आया था उसकी वजह से हमारा करंट ईयर का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल में जो एडवांस आता है वो करंट ईयर के लिए आता है। ओके, सो उसकी वजह से हमारा करंट ईयर का इनकम बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओके, नाउ दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विथ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन आया। नाउ टेल मी हाउ मेनी इफेक्ट्स यू आर गोइंग टू पास? दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विथ करंट ईयर, सो यू हैव टू पास 2 effects. Why? Because we received subscription in advance during the current year. Okay, now what effect you will give? Now this subscription we have received during the current year. करंट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन आया है, सो ये कौन से ईयर का इनकम होगा? इट विल बी द इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि करंट एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉलोइंग ईयर के लिए, आगे आने वाले साल के लिए। ओके, सो इफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर, ये हमारे करंट ईयर का इनकम नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, फॉलोइंग ईयर का इनकम है। ओके, सो वी विल लेस इट फ्रॉम इनकम साइड। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन से हम इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट द इनकम ऑफ करंट ईयर। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी शो ओनली दोज इनकम्स विच आर रिलेटेड विथ करंट ईयर ओनली, करंट ईयर के ही इनकम है हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो लेस सब्सक्रिप्शन received
in advance ड्यूरिंग करंट ईयर. ओके, ये हम लेस करेंगे. तो सेकेंड इफेक्ट, इट्स अ pre-received income. Subscription received in advance is a pre-received income. That means it is income received in advance. Now in final account, we have already studied if any income which is received during the current year for following year is called income received in advance. अगर कोई भी इनकम हमें करंट ईयर के अंदर एडवांस में मिलता है तो वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है. ओके, एंड दैट्स व्हाई विल शो सेकेंड इफेक्ट इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है. ओके, सो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट वी विल राइट सब्सक्रिप्शन received in advance during current year. Or just you can write advance subscription. Okay, once again we will revise all adjustments which are related with subscription, because subscription is very important concept in this chapter. If any student understand the concept of subscription, he can easily solve any question of not for profit concern. Okay, but if any student does not understand this concept of subscription, then it will or he will find very difficult to solve this question. Okay, so it's a very important concept. Once again we will revise it. First of all, subscription given in receipt and payment account. Okay, so subscription received during the current year, ये current year का subscription है. So we will show it in income side. Only one effect we have to give for पोस्टिंग द आइटम ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के आइटम का पोस्टिंग करने का हमें खाली एक ही इफेक्ट देना है. सो हियर वी विल राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर. ओके, नाउ वी विल रीड ऑल एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विथ लास्ट ईयर you have to give only one effect. If additional information is related with current year, you have to give two effect. Okay, first adjustment, outstanding subscription of last year or previous year. Now outstanding subscription of last year, so you will give only one effect because this income is related with this outstanding subscription is related with last year. Okay, so ये पिछले साल का outstanding income है, पिछले साल का ये income है. Okay, so we will less it from income side. From subscription we will write less outstanding subscription of last year. Okay, just one effect you have to give. Second adjustment, outstanding subscription of current year. Now if outstanding subscription of current year is give, that means you have to give two effect. Okay, because this adjustment is related with current year. First of all, it's a income of current year. ये हमारा current year का outstanding income है, तो उसके वजह से हमारा करंट ईयर का इनकम बढ़ेगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी विल ऐड इट इन इनकम साइड. ओके, सो हियर वी विल राइट ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर. ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट वी विल शो इन असेट साइड. इन असेट साइड वी विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो आप ऐड करोगे. कोई भी इनकम अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इनकम साइड में जाके ऐड करना है, और सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करना है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
third point, third adjustment. Subscription received in advance in previous year or last year. Okay, subscription is received in advance in previous year or in last year. लास्ट ईयर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था. अभी लास्ट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है वो कौन से ईयर के लिए होता है? एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए होता है. नेक्स्ट ईयर मतलब हमारा करंट ईयर, जो साल चल रहा है उसे कहा जाता है करंट ईयर. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट, because of subscription we have received in last year, advance subscription we have received in last year, our income of current year will increase. जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में हमें पिछले साल मिला था वो करंट ईयर का इनकम होगा और उसके वजह से हमारा करंट ईयर का इनकम बढ़ेगा. तो वो ऐड करना है, एक ही इफेक्ट देना है. सो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर. ओके, नेक्स्ट इज subscription received in advance during the current year. Now here we have received subscription in advance during the current year. Current year में हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है. Obviously this will be the income of next year. ये नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा क्योंकि जो चीज हमें करंट ईयर में एडवांस में मिलती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होती है. So it is the income of next year. Okay, so we will माइनस इट. ओके, बट इट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर. तो आपको इसके कितने इफेक्ट देने हैं? 2 इफेक्ट देने हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट करंट ईयर से रिलेटेड है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा तो आप इसे लेस करो. सो हियर वी विल राइट लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर. ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट, इट्स अ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ये हमें इनकम एडवांस में मिला है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री रिसीव्ड इनकम. अगर कोई भी इनकम हमें नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में मिलता है तो वो हमारी लायबिलिटी है. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी विल शो इट इन लायबिलिटी साइड. इन लायबिलिटी साइड वी विल राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर. नाउ टुडे वी हैव स्टडीड various adjustments or additional information related to subscription. Now in my next video we are going to study 2 or 3 questions, small questions which are related with concept of subscription. Okay, so that the concept of subscription will get fit in your mind. Okay, thank you so much for watching my video.